أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد گرامی سے پہلے کی گفتگو کا آغاز ہو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اعجاز فاطمہ اور عصمت زیدی بنت ظفر نبی کی محمد والے محمد. اعزاز گرامی پر ملت جعفری کے فرزندوں ذکر حسین اور ذکر کربلا عام کرنے والے آج ماہ سفر کی 29 تاریخ کو مسجد بلقیس جہاں میں آپ سے مخاطب ہونے ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کیا. اعزاز گرامی بے شک ہم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ فرش اعضا پر موجود ہیں. یہی اس فرش اعضا کا شرف ہے کہ یہاں بڑی بڑی ذات ہے، بڑی بڑی شخصیت بیٹھتی ہیں. ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ہمت اور حوصلہ اسی سے ہوتا ہے کہ ہمارا چوتھا امام فرش اعضا پر بیٹھتا تھا اور ذاکر مجلس پڑھتا تھا. وقت کا امام جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، اس کے سامنے کسی کا ذکر کرنا معمولی بات نہیں. اور مولانا صاحب دونوں بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے. پرفیکشن اور کمپلیٹ صرف معصوم ہوتے ہیں، اور ہر انسان میں امپرومنٹ اور اصلاح اور سدھار کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کوئی کمی ہو تو ہم سے تنہائی میں بتائیں گے، ہم ضرور امپرومنٹ کریں گے، اصلاح کریں گے، سدھار کریں گے. جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی قابل احترام خوشید بھائی نے کہا، ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جس قدر کم وقت میں اپنی بات کہی جائے اور آپ کو اذیت قطعی نہ پہنچائے. جو مجلس ہوتی ہے نمازی اذان کے پہلے سے وقت سے نکلا ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے اور سے گھر واپس جاتا ہے، تو بہت کم وقت میں. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ بہت لمبی طویل ایسا نہیں ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا جو سبق یاد ہے وہ پورا سنا کے جانا ہے، بلکہ چند لمحوں میں اگر ذکر مولا ہو جائے تو وہ کافی ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زینت کو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، اور ذکر خدا عبادت. تو منطقی نتیجہ یہ نکلا، انالیسس یہ ہے، ان شارٹ ایز اے رزلٹ اگر کہا جائے سیدھی کم لفظوں میں کہ علی کا ذکر عبادت. یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے موقع پر پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر
इबादत। ऐज़ान ग्रामी, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि ये मौजू ऐसा है कि जिस कदर इस पर गौर व फिक्र करिए, जितना मुतालिया करिए, उलमाए किराम को जितना सुनिए, जितना ज़िक्र अली करिए, जितना ज़िक्र अली सुनिए, आपके इल्म में इजाफा होता जाता है, आपकी जानकारी बढ़ती जाती है, नए नए नुक्ते और गोशे आते हैं और जानकारी में इजाफा होता है। इन सब से अहम और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ज़िक्र अली करते हैं और ज़िक्र अली सुनते हैं तो आपके अकीदे को, ईमान को, रूह को ताज़गी बुलंदी मिलती है। ये ज़िक्र अली का मुद्दा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तो पैगंबर इस्लाम क्या चाहते हैं? जीनत हो तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली से, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र और ज़िक्र खुदा इबादत। पैगंबर इस्लाम चाहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी अली से बने, सुबह दोपहर शाम रात, यानी बेदार होने से लेकर और बिस्तर पे जाने तक हम सिर्फ और सिर्फ अली अली, हमारी कनेक्टिविटी अली से बनी है। जब हमारी कनेक्टिविटी अली से रहेगी तो हमारी कनेक्टिविटी रसूल अकरम से रहेगी, और जब रसूल अकरम से रहेगी तो हमारी कनेक्टिविटी खुदा से रहेगी, और जब हम ज़िक्र खुदा करेंगे तो हम इबादत करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, जो पैमाना है, वो ये है कि अगर नीचे से चलेगा सीरियत तो पहले अली, फिर रसूल अकरम और फिर खुदा, और अगर ऊपर से चलेगा तो खुदा, रसूल अकरम और फिर अली। हम पे फिजूल का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अली को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। हम तो इसी सीरियल को मानते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सीरियल खुदा ने बनाया, इसमें किसी को दाखिल नहीं किया जा सकता बीच में, क्योंकि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो सिलसिला है ये बिला फस्ल है, बगैर किसी गुंजाइश के कहीं कोई सुराख ही नहीं है कि कोई इंसान उसमें दाखिल हो। और इसीलिए जदीद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके ऐलान किया, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका जिसका मैं मौला उसका उसका अली। यानी कि अली की विलायत सबसे अहम है। अगर अली की विलायत होगी तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास रसूल भी होंगे, तुम्हारे पास खुदा भी होगा, तुम्हारे पास दीन भी होगा। अगर अली की विलायत नहीं है तो ऊंचे कूद कर तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, इंतज़ाम भी देखिए क्या खूब किया। ये नेटवर्क का ज़माना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये इंटरनेट का ज़माना है, और पूरी दुनिया नेटवर्क से जुड़ी हुई है। और आज तो मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है। मोबाइल की कीमत से स्टेटस होता है, वरना गरीब तरीन आदमी के पास भी मोबाइल है, किसी के पास 1 लाख का, किसी के पास 2 लाख का, किसी के पास 4 लाख का, किसी के पास 500 का, 1000 का। यानी नेसेसिटी है इन दिस एज। आज के दौर में ये ज़रूरत है। अब वो अपना अपना स्टेटस सिंबल है, जिसके पास जितना पैसा उतना, वरना है मोबाइल सबके पास। एक दौर वो भी था जब शुरुआत हुई थी, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब इनकमिंग के चार्जेस लगते थे, और लोगों को याद होगा उषा और एसआर सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो नोकिया 5110 बड़ा वजनी था, भारी था, तो उस ज़माने में भी तब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना नेटवर्क नहीं था, तब स्टेटस सिंबल था, बड़े लोग रखा करते थे और रिसीव करते थे साहब। तो आज के जैसा न टावर्स थे, न फाइबर ऑप्टिकल्स बिछे थे, न इतना नेटवर्क था, बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कॉल आ जाती थी तो लोग मैदान की तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉपर काम करता था। या गांव में रहने वाले लोग पेड़ों पर चले जाते थे, जल्दी से चढ़ जाते थे। आज भी इतने टावर्स लगने के बाद, इतने फाइबर ऑप्टिकल्स बिछने के बाद, इतनी बढ़िया नेटवर्किंग होने के बाद, कि जब एक दुनिया के एक कोने का वीडियो सब बदन में दूसरे कोने में चला जाता है, उसके बावजूद
जब कभी हलो हलो करके बात नहीं होती तो हम बाहर की तरफ जाते या पर छत पर चले जाते हैं, फिर प्रॉपर आवाज़ आने लगती है। 14 सदियों के बाद जिस चीज़ की ईजाद हुई, परवरदिगार आलम को इस बात का कितना ख्याल था, कितना बेहतर इंतज़ाम किया। अली की विलायत का ऐलान किसी बंद कमरे में नहीं किया, बल्कि खुला मैदान था और बुलंदी में उठा के कहा मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, ताकि कल को ये न कह सके कि बंद कमरे में मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, सबका नेटवर्क बराबर काम करता रहे। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसका नेटवर्क तब भी फेल था, आज भी फेल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली से, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र और ज़िक्र खुदा इबादत। जैसा गुज़श्ता मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि मजलिस का मकसद कतई मजलिस हुसैन से नहीं है, बल्कि ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिस। तो हमारी मजलिस, एक किसी शख्स से हमारी मीटिंग हो गई, मुलाकात हुई, मजलिस हो गई। अब वो 2 से ज़्यादा 200 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, घर से लेके बाहर तक। तो ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली से। इसका मतलब ये है कि घर में अगर देखें तो वालिदैन के साथ भी हमारी मीटिंग है, मजलिस है, बच्चों के साथ भी है, भाई के साथ भी है, बहन के साथ भी है, फिर अजीज़ों के साथ भी है, रिश्तेदारों के साथ भी है, पड़ोसियों के साथ भी है, जगह जगह मजलिस है। अब एक चीज़ ये है कि हमारे एक चीज़ ये राइज है कि दीन अलग है, दुनिया ये और दिन होंगे जिनकी दीन अलग है, दुनिया अलग है। हमारे दीन के साथ दुनिया है और दुनिया के साथ दीन है, तभी हम कामयाब हैं। हमारा दीन ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ के पहाड़ पे चले जाओ, गुफा में चले जाओ, कुओं में चले जाओ, बल्कि इसी दुनिया में रहते हुए हक के साथ रहो, ईमान पे रहो, दीन पे रहो, यही हमारा दीन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ऐसा तो नहीं है। हम अक्सर ये समझते हैं कि ये मजलिस, ये मातम, ये ज़िक्र मौला, ये ज़िक्र अली, ये अलग पार्ट है। कहाँ साइंस, कहाँ टेक्नोलॉजी, कहाँ ऑफिस, कहाँ दफ्तर, कहाँ वर्किंग प्लेस, ये अलग। तो पैगंबर इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि मजलिस में कर देना ज़िक्र अली का, मस्जिद में कर देना, दरगाह पे कर देना, अपने अजीज़ रिश्तेदारी में जहाँ शिया लोग वहाँ कर देना, जहाँ मुसलमान वहाँ कर देना, बस। ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली से, एवरीवेयर, जहाँ भी आप रहो अली का जिक्र करो, मजलिस की ज़ीनत पढ़ो। जब आप ये बताइए कि हम एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ क्या अली का जिक्र करने हो, क्या शिया में झगड़े कर रहा कोई मौजूद हो। जब लोग जस्टिस का जे नहीं जानते थे, अदल का ऐन नहीं जानते थे, तब ऐसा ऐसा अदल किया मौलाए कायनात ने, ऐसी ऐसी कानून राय किए। आपकी जानकारी के लिए कि आज की हमारे हिंदुस्तान की अदालतों में नब्र फ़ानी, तजवीज़ फ़ानी, ये सब चीज़ें जो राय हैं ये मौलाए कायनात ही करती हैं। जब लोग साइंस का इस नहीं जानते थे तब वो फार्मूले किए जो आज तक लोग नहीं जानते। जब लोग मैथमेटिक्स का एम नहीं जानते थे तो वो कैलकुलेशन दिया, वो फार्मूला दिया जो आज की तरक्की याफ्ता दुनिया नहीं जानती। इल्म की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो आज राइज है। कितने उलूम तो लोग जान ही नहीं पाए जो मौलाए कायनात से सीखी। तो मसला क्या है? मसला ये है कि अली के बारे में हम जानते ही उतना है जितना हमने खतीब से, ज़ाकिर से सुना। कुछ वाक़यात सुन लिया है। अब गैर मुस्लिम में अदर प्लेसेस पे मजलिस की ज़ीनत बढ़ाने के लिए जब हम अली का जिक्र करना चाहेंगे तो अली आना भी चाहिए। उलमाए किराम ने इतनी मेहनत से, मशक्क़त से, अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त लगाकर किताबें लिखी हैं मुतालिया करके, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्च कर दी। हमें तौफ़ीक़ नहीं कि उन किताबों का मुतालिया। जब हम उन किताबों को पढ़ेंगे, जब हम अली को जानेंगे, तब जाके हम अली का जिक्र नहीं भी कर सकते। बहुत जाने गिरामी, उससे भी आम बात, उससे भी आसान बात नहजुल बलागा।
मौलाए कायनात के खुतबों को मुरतब कर दिया गया, संकलित कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया, एक ऐसी किताब बनी जो अल्लाह के कलाम के बाद ये पूरी कायनात उस किताब का जवाब नहीं ला सकती। अब बड़ी अहम बात है कि नज़र भाई जैसे कुरान की ज़ुबान में बात करते हैं, हर वक्त कुरान की आयतें और सूरह बयान करते हैं, उसकी तशरीह बयान करते रहते हैं, चाहे घर पे हो, मस्जिद में हो, घर के बाहर हो। बेशक कुरान हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ। हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुरान की सूरह और आयत की तशरीह करनी चाहिए। तो कुरान की तिलावत तो हम कर नहीं पाते, नहजुल बलागा कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा साहब, हम बहुत मसरूफ़ भी हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। अच्छा कहा जाए कि नहजुल बलागा क्यों नहीं पढ़ते? आपने हद कर दिया साहब, 10 बजे तो हमें ऑफिस पहुँचना होता है, 6 बजे लौटते हैं, जमात अक्सर मिलती है, अक्सर नहीं मिल पाती है, घर के काम है, ये है वो है। ये अलग बात है कि मोबाइल पे अगर सर्च करना शुरू करें तो घंटों घंटों उस पर बीत जाता है, लेकिन नहजुल बलागा पढ़ने की तौफीक नहीं है। चौराहे बाजी, चाय की दुकान, चट्टी पर फिजूल की ग़ीबत में, बातचीत में बहुत वक्त गुजर सकता है, नहजुल बलागा पढ़ने का वक्त थोड़ी। सियासत में फिजूल का वक्त ज़ाया हो रहा है कि तो अल्लाह का करम हुआ, इस बार कश्मीर से कुछ मेंबर आप पार्लियामेंट पहुंच गए। पार्लियामेंट में आपका कोई आदमी पहुंचता नहीं, विधानसभा में आप किसी को पहुंचा नहीं पाते, कोई काबिल ज़िक्र पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, लेकिन साहब पूरा दिन चला जाता है किसकी सरकार गिर रही है, किसकी सरकार। मतलब क्या है, मसला क्या है? अब आप उसमें कुछ दखल रखते हो, कुछ कर पाते हो तो करिए, वरना जो कर सकते हो वो करिए। सलवात पढ़े मोहम्मद। बहुत जिंदा सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जब भाई मौजूद है कि हमारे जानने वाले एक जौनपुर में ज्ञान कुमार जी हैं, जो आप ही के बैंक में थे, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड मैनेजर। अब होता क्या है कि दरअसल मामला यह है कि हम पुश्तैनी हुसैनी, हमारे रगों में विलायत है, हमको अली की विलायत और आका की अज़ा विरासत में मिली है। अक्सर विरासत में जो चीज़ मिलती है उसको हम अहमियत देते हैं, वो तो मिल ही गई है बाप दादा से, दादा भी थे, परदादा भी थे, अब्बा भी थे, और फिर वो रस्मन निभाया जाने लगता है। जो चीज़ विरासत में मिलती है उसकी अहमियत आदमी नहीं समझता। अब जो मेहनत मशक्क़त करके लाया, तो कहता खबरदार इसको छूना मत, बड़ी मेहनत से तनख्वाह इकट्ठा करके ये सामान खरीद के लाया हो, इसे महफूज रखना। इधर जो विरासत में मिली है करोड़ों की, वो ऐसी करी। तो हमें अहमियत इसलिए नहीं कि विलायत और आका हुसैन की अज़ा हमें विरासत में मिली है। अगर इसकी अहमियत हमने नहीं समझा, ऐसे ही वक्त के साथ कम होती रही और आने वाली नस्लों में, जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रही, तो विलायत और आका की अज़ा हमारी जनरेशन में महज रस्म बन कर रह जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद। ज्ञान कुमार जी की बात, ज्ञान कुमार जी हमारे दोस्त, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड मैनेजर, और खुदा कब इसको तौफीक अता करते। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि जब मजलिस हुसैन में कोई गैर आ जाए तो उसको ज़्यादा तरजीह। होता क्या है कि हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, और एक और बड़ा अहम काम कि उसको एक ही दिन में चाहते हैं कि आज ये सिया हो जाए तो तरह आगे जाता है। सलाम पढ़े मोहम्मद। अक्सर ये होता है, ये मजलिस हुसैन है, इसका सबसे सबसे कम सबसे आखिरी बेनिफिट तवज्जुह है। मजलिस हुसैन में आने पर न जाने क्या क्या हासिल होता है, जिसकी जैसी तौफीक है, जिसका जैसा ज़र्फ है, वो वैसा लेके जाता है। सबसे आखिरी चीज़ तवज्जुह। तो अब जो सिर्फ तबर्रुक लेने आता है उसको कहा जाए हट, कहाँ से चले आए तुम तबर्रुक लेने चले जाए। और जो एकदम सफ़ेद पोश आए थे उनको छेड़ दिया, वो आपके लड़के का भी, आपके चचा का भी, आपके दादा की नहीं आ पाए। जो तबर्रुक के लिए आया उसे तबर्रुक दो, हुसैन की अज़ा में आता रहे, हो सकता है कल हुसैनी हो जाए। इंशाअल्लाह। तो ज्ञान कुमार जी जौनपुर के गांव सुल्तानपुर दरवेश अली के रहने वाले,
उनके गांव में भी कुछ अहले शिया थे, यूं ही मस्जिद में चले जाते। अब जाते जाते कनेक्शन शुरू हुआ। हमारी वालदा मरवा गवर्नमेंट टीचर थी, वो पंजाब नेशनल बैंक थे, वहीं थे। उस वक्त मैनेजर नहीं थे, मैनेजर बाद में हुए, क्योंकि तनख्वाह वहीं से मिलती थी। वालदा को चिप लेकर मैं जाया करता था, पढ़ता था, आते जाते वहाँ हुआ थी। अब जैसे जैसे उनकी इंटीमेसी बढ़ती गई, हम जैसे लोगों से उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि तनवीर भाई ये क्या होता है, तनवीर भाई वो क्या होता है, और लोगों से सिलसिला आगे बढ़ा। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वो उस मुकाम पे पहुँचे कि हम लोगों से बराबर में डिबेट कर रहे थे। विरासत तो नहीं मिली थी ना, मेहनत कर रहे थे, मशक्क़त कर रहे थे, मुतालिया कर रहे थे। और आज तो वो मकाम है कि जब वो बोलते हैं तो हम जैसे लोग खामोश होते हैं, उनकी सुनते रहे, वो हमें बताते हैं। और एक चीज़ हम अक्सर कहते हैं, देखिए दीन का बाकी रहना अहम है, जुबान बाकी रहे न बाकी रहे। बेशक अगर हिंदी में किसी ने कहा अरे साहब वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, अरे हिंदी उर्दू फारसी इंग्लिश तेलुगु नहीं, दीन बाकी रहे ये अहम है, जुबान बाकी रहे न बाकी रहे। सदा पढ़े मोहम्मद। तो ज्ञान कुमार जी न उर्दू जानते, न अरबी जानते, न फारसी जानते। जितनी किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका वो सब उनके पास, इफरात किताबें। तो साहब माशाल्लाह करते, ताज़िया वो अदाखाना सस्ता है, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं, फज्र की नमाज कज़ा नहीं होती, पाबंदी वक्त के साथ नमाज है, रोज़ा है, इफ्तार कराते हैं। एकदम आखिरी मंजिल पे असद भाई आऊँगा, जिसके लिए मैं पूरी ये तरकीब मांग रहा हूँ। और अब वो ईरान के आलिमों के टच में रहते हैं। हम जैसे लोगों से नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उनसे पूछते हैं और वो बताते हैं। करबला की ज़ियारत कर चुके हैं और हिंदी में उन्होंने करबला की किताब है, बहुत तजुर्बा निकाला। अब हमारे घर में पहले से उर्दू में नहजुल बलागा थी, उसके बावजूद ज्ञान भाई ने कहा कि तनवीर भाई आपको हिंदी में नहजुल बलागा, आपने उर्दू पढ़ी होगी, लेकिन होता यह है कि जो चीज़ रवानी में होती है वही इसी गोइंग होती है। हम लोग ऑफिस में, दफ्तर में, हर जहाँ हिंदी में काम करते हैं, तो मेरे पास हिंदी की नहजुल बलागा। अच्छा, एक उनका शौक़ भी है, हिंदी की नहजुल बलागा उन लोगों को डोनेट करते हैं, तो हिंदी में नहजुल बलागा थी। अब आखिरी बड़ी उम्दा बात, हम उनसे ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हूँ मैं, ना उनसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट है हमारी। उन्होंने बताया तनवीर भाई ये मेरा रोज़ाना का ये रूटीन है, डेली रूटीन है कि हर रोज़ मगरिब के बाद मैं बावज़ू नहजुल बलागा का मुतालिया करता हूँ। न जाने कितनी बार ख़त्म कर चुके। अब आगे सुनिए, ज़ीनत दो तुम अपनी मजलिसों को, ज़िक्र अली से इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र, और ज़िक्र खुदा इबादत है। हम मजलिसों में अली का ज़िक्र कर सकते हैं, हम अपने घर में अली का ज़िक्र कर सकते हैं, हम रिश्तेदारी में अली का ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन अदर प्लेसेस पर लोगों के बीच में ज्ञान कुमार अली का ज़िक्र कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कैसे? आज की डेट में वो जब बात करते हैं तो नहजुल बलागा की ज़ुबान में बोलते हैं। जैसे ही बैठेंगे कहेंगे तनवीर भाई इस मौके के लिए मौला ने खुतबे नंबर इतने में ये कहा, इस मौके पर मौला ने खुतबे नंबर ये में ये कहा। एक मरतबा एक मौलाना साहब, उनका बड़ा नाम था, बहुत ब्रांडेड थे, और हमारे यहाँ दस्तूर भी है कि चाहे 3 घंटा मजलिस लेट हो जाए, लेकिन साहब बुलाएंगे ब्रांडेड, ये बड़ा दस्तूर। और उनका भी क्या कहना साहब, जो ब्रांडेड है, मतलब एक दिन में 5 बयाना मिलना है ज़रूर। अरे भाई मगरिब के बाद से मजलिस शुरू होती है, क्या 2 बजे रात तक पढ़िएगा? अरे कहते साहब मैं एक पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की गुंजाइश है। तो पता लगा मजलिस हुई 2 बजे तक, फिर यहाँ आदमी आए साहब सुबह में पढ़िए, सब 5 का बयान ज़रूर लेंगे। और हम गए तो हमको ये हुआ कि अरे साहब फला से क्या पढ़ा रहे हो, तो पढ़ते तो हैं, ब्रांडेड होना चाहिए। और ब्रांड के पास उनका भाई मैं 3 मजलिस से पढ़ रहा हूँ। अरे साहब ठीक है, 15 शायर हैं, 1 सोखा है, पढ़ाते रहेंगे, बिरयानी चढ़ी रहेगी, चाहे ठीक है पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ेंगे। सब पढ़े मोहम्मद बहुत
बहुत बड़े आलिम थे कोलकाता के, वही ब्रांडेड वाले, और साहब कुछ पढ़ गए, और जब कुछ पढ़ गए तो हम जैसे लोग तो वहाँ थे नहीं, ज्ञान कुमार जी ने दौड़ा दिया। बहुत बड़े थे, यहाँ भी आते थे, नाम लेना मुनासिब नहीं मेंबर, यहाँ बड़े उससे बुलाए जाते हैं। ज्ञान कुमार जी ने दौड़ा लिया, और जो पानी थे सोचे कि हमारी बेइज्जती होगी, उन्होंने मिलने नहीं दिया। आफ्टर आज उन्होंने दौड़ा के पकड़ ही दिया। तो कहा मौलाना साहब आपने ये चीज़ जो पढ़ी थी ये बिल्कुल सही नहीं पढ़ी, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर इतना पढ़िए, इस बात के लिए मौलाना ने ये कहा है। मौलाना ने कहा मैं जानता हूँ आप बड़ा इल्म रखते हैं, माफ़ी चाहता हूँ ज्ञान कुमार जी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो नहजुल बलागा हम इस कदर पढ़े कि नहजुल बलागा की ज़ुबान में जब बोलने लगेंगे तब हम अपनी मजलिसों की जीनत दे सकेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक वाक़या और आपकी खिदमत में, और वक्त हो चुका है। मौलाए कायनात मौजूद है और एक यहूदी आया, उसने कहा साहब पूछे के मेंबर पे मेरा मौला मौजूद है, और कहा कि वो हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। और अच्छी बात है, कलमा पढ़ लो। अरे साहब एक सवाल है, हमारे सवाल का जवाब दीजिए तभी मैं कलमा पढ़ूँगा। तो कहा बताओ। उसका सवाल ये है कि कुरान का ये दावा है कि हर खुशकुतर का तज़किरा इसमें है, बेशक हर खुशकुतर का अल्लाह का कलाम इसमें है, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता हूँ। था 1 लाख, पूछा अंबिया कितने, तो बताया 1,24,000 का। कुरान में तो सिर्फ 29 का है, आप 1,24,000 दिखा दीजिए, मैं दीन इस्लाम से दायरे में दाखिल। बड़ा अच्छा ये था, ये सवाल मौला से हुआ था, हम जैसे मौलवी से नहीं करते। तो मौलाना ने उससे कहा कि वो सामने नीम का पेड़ है, वहाँ से निम्बोली ले आओ। निम्बोली उसका भी हमारी तरफ पूर्वांचल में निम्बोली जिसको कहते हैं, निम्बोली ले आओ। अब निम्बोली हाथ रखा और कहा कि मौला ये हमने सवाल आपसे कुछ किया, आपने कुछ कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर इसको इस रेत में गाड़ दोगे तो क्या होगा? तो उसने कहा जब रेत में गाड़ देंगे तो इसमें से पेड़ निकलेगा, शाखें निकलेगी, पत्ती निकलेगी। तो कहा इसमें कुछ अलग से तो होगा नहीं, तो इस निम्बोली में, इस निम्बोली में हमें वो पेड़ दिखा दे, वो शाखें दिखा दे, वो पत्ती दिखा दे। कुरान कोई अरबी का डॉक्यूमेंट नहीं है कि कोई बहुत अरबी का जानकार जान जाए। बहुत तो चौधरी निगरानी, हम अपने आप पर फख्र इसीलिए करते हैं कि जो 73 फिरके हैं, अहम बात ये होती है कि कोई चीज़, कोई खबर आपके पास किस राय से पहुंची, माध्यम क्या है। वो पता लगा साहब बहुत बड़ा बम ब्लास्ट अमेरिका में हो गया, कैसे पता लगा? तो मैंने फला चीज़ ने कहा वो तो झूठा है यार, किससे पता? नहीं, PTI की न्यूज़ है, ANI की न्यूज़ है, यानी काबिल यकीन ज़राए से जो खबर आती है हम उसी पर यकीन करते हैं। तो 73 जो फिरके हैं उनमें हमारे लिए फ़ख्र की ये बात है कि दीन इस्लाम जो पहुंचा हम तक तो सबसे प्रॉपर रिसोर्स से पहुंचा है, मासूमीन के जरिए पहुंचा है, पंचायत के जरिए खड़े होने वाले किसी इंसान के जरिए नहीं पहुंचा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कायनात ने कहा कि जैसे इसमें शाखा, पेड़, शाख, पत्तियाँ नहीं दिख रही है, वैसे कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुरान को समझना है तो वारिस कुरान से समझना, कुरान को समझना है तो उससे समझना होगा जो नौके नेज़ा पे जिसकी सर बुलंद हो और कुरान की तिलावत करे। सलात पढ़े मोहम्मद। आज चूँकि हमारे 2 मामूज़ात बहन की साल सवाब की मजलिस है, हमारे मामू लगभग 75-80 साल की उम्र है, DG ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुए। पहले उनकी एक बड़ी बेटी गवर्नमेंट टीचर थी, वो एक्सपायर कर गई, 2 ही बेटियाँ थी, और एक बेटी अभी 4 चंद रोज़ पहले
हमारे घर में बैठे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 26 महीना पहले शादी हुई थी, विलादत के मामला में फैज़ान ग्रामी हमारे मामू और मवानी के ऊपर जो उनके जीने का सहारा वाली बेटी थी, मुसीबत का पहाड़ और हमारे घर से साथ थी। लेकिन बेशक इनकी मुसीबत के लिए अल्फाज कम हैं, मरहम सिर्फ ज़िक्र करबला। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब तुम दुनिया के गम में परेशान होना तो हमारे दिल फैज़ान ग्रामी चूँकि मजलिस बहन की है, इसीलिए एक ऐसी बहन का मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। 22 सफ़र को हमारे आशियाने पर जो मजलिस अज़ा थी, आपकी खिदमत में सौरभ शुक्ला का जिक्र किया था। वक्त के दामन में गुंजाइश कम थी, कुछ जिक्र बात किया तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सौरभ शुक्ला ने कहा कि करबला जाना, ज़ियारत करना, मजलिस हुसैन करना, मातम करना, ये सौरभ शुक्ला की दीवानी है, उसके एहसासात है। बेशक ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप करबला से लौटिए तो अगर इमाम हुसैन का पैगाम लेके आए, आपके किरदार में हुसैन नहीं आए तो कोई मतलब। सौरभ शुक्ला ने कहा कि मैं करबला से सिर्फ हुसैन का थोड़ा सा किरदार लेके नहीं आया हूँ, बल्कि जनाब ज़ैनब का। इमाम हुसैन सौरभ शुक्ला ने कहा कि जब और मोहम्मद शहीद हुए तो जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों का गम नहीं मनाया ताकि मेरा भाई कमज़ोर न पड़े। फैज़ान ग्रामी एक बड़ी उम्दा बात सौरभ शुक्ला ने कही। करबला से लौटने के बाद वो बयान करते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं बतौर सहाफ़ी करबला गया था और ये मैंने महसूस किया कि इस पूरी कायनात की शायद सबसे पहली और अहम सहाफ़ी जनाब ज़ैनब थी। इमाम हुसैन की शहादत का जो पैगाम जनाब ज़ैनब ने पहुँचाया वो आज तक बाकी है और कायम है और क़यामत तक बाकी है। रोज़े आशूरा अब्बास शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए, असगर शहीद हो गए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। जनाब ज़ैनब न होती तो आज इमाम हुसैन और करबला का ये जिक्र इमाम हुसैन का पैगाम जो आज तक जिंदा और बाकी है, ज़ैनब न होती तो ना। हाँ, ज़दारान हुसैन की शहादत के बाद आका हुसैन के मिशन को, आका हुसैन के पैगाम को जिंदा रखा। वक्त की इमामत की भी हिफाजत की है। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का जिंदान। हाँ, ज़दारान हुसैन जब कौन मोहम्मद शहीद हुए, कौन मोहम्मद का लाशा आया, उससे पहले जब और मोहम्मद जा रहे थे तो जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं जानती हूँ तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर के पोते हो, तुम बड़े सजा हो, हम जानते हैं कि तुम जंग करते करते नहरे फुरात तक जरूर जाओगे, लेकिन एक वसीयत है कि देखो तुम नहरे फुरात तक जाना लेकिन पानी न पीना, क्योंकि तुम्हारे मामू के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। जब औलू मोहम्मद ने आवाज़ दी है, इमाम हुसैन पहुँचे हैं, तो एक की रूह जन्नत को परवास कर गई थी, एक की रूह बाकी थी। उसने इमाम हुसैन से कहा, हे मामू, हमारी माँ तक हमारा पैगाम पहुँचाइएगा। हम फुरात तक पहुँचे थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया। जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों का गम करबला में नहीं मंगाया। जनाब ज़ैनब ज़िंदान शाम में जब रिहाई हुई है, सब के सर आने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चों का सर नहीं लिया। पूछने वाले ने पूछा, क्या इसकी माँ खैमे में जलकर मर गई? ईसा ने कहा, नहीं, इसकी माँ जिंदा है। जब ये काफिला लौटते हुए करबला आया तो भी जनाब ज़ैनब ने हुसैन का गम मनाया। उसके बाद जब काफिला मदीना पहुँचा तो जनाब ज़ैनब ने मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में सिर्फ अपने भाई का पुरस्कार
اور اس کے بعد جب مدینے میں عورتوں سے یہ کہا کہ مجھے صرف اور صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، عزاداران حسین جب جناب زینب اپنے گھر پہنچی ہے، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، آن محمد یاد آئے، زینب تڑپ گئی، اے آن محمد، اب زینب اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ والے تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، کریم ہونے کا واسطہ، آقا حسین کا واسطہ، ہماری سزا اس عبادت کو قبول کر۔ والے تجھے آقا حسین کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ہیں چوتھے امام کے صدقے میں سب کو شفا دے۔ والے ہم سب کے جائز اور حلال جسم میں برکت دے۔ والے تجھے آقا حسین کا واسطہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے رزق انتظام کرے۔ والے تجھے آقا حسین کا واسطہ، ہم مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم سب کے ماننے والے، ہم سب کو علم حاصل کرنے اور علم کی دنیا میں سب سے بلندی پر رہنے کی صلاحیت والے، ہم سب کا شمار مرتے دم تک آقا حسین کو بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اجاز فاطمہ عصمت زیدی بن Yeah.